you can see what I told earlier is, you can see this is the substance of lung, and that is the adherent pleura that is covered here, the lungs, that is the visceral pleura. And then you can see this color. Okay, you can see here, these all are the layer of the what, parietal pleura. So there are 4 parts of the parietal pleura. आप यहाँ पे समझो तुम कि coastal pleura है, यहाँ पे है ये, this one is the coastal pleura up to here. You can see this is the coastal pleura, and this coastal pleura above continuous as cervical pleura. फिर downward जाएगा तो mediastinal pleura बन जाते हैं. Then you can see this coastal pleura continuous as again the diaphragmatic pleura, continuous as the diaphragmatic pleura. Now you can see, and this diaphragmatic pleura goes up above, okay, upward direction, and then this continuous as the mediastinal pleura. So you can see here, everyone, just see here, this is the part of the, these all are the parts of the parietal pleura. Okay, coastal pleura, then continuous here, this coastal pleura continuous here, the this is the cervical pleura here up to here, this is the cervical pleura, and this cervical pleura continues as the mediastinal pleura. And now here you can see the coastal pleura, again here it continues as the diaphragmatic pleura, and this diaphragmatic pleura continues as the mediastinal pleura. So अब continuation बताओ, किसका किसका continuation क्या क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ. सेम इसी लाइन में ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ parietal pleura. अब ये parietal pleura जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर को जो कवर करके रखता है, उसी से नाम होता है, there are 4 parts of the parietal pleura. So now can you tell how it continuous? Coastal pleura continuous as what? ऊपर जाएगा, above जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेम cervical pleura. Yes, and cervical pleura continuous as here. Downward. Mediastinal pleura. Yes, up to here is the cervical pleura, and this is the cervical pleura, and from here this line, this is the ribs. So here first rib. Now below this first rib here, this is the mediastinal pleura up to here. Now next is coastal pleura, again continuous as what? Diaphragmatic pleura. Yes, and diaphragmatic pleura continuous as here, mediastinal pleura. Mediastinal. So now these all are the interconnection or the continuation of the each pleura. Okay, now you can see again here, this is the substance of the right lung, this is the substance of the left lung. Then you can see here, this is the pleural sac. Okay, this is the pleural sac. In this pleural sac, there is the presence of the right lung and left lung here. And then you can see these all are the fissures. Here you can see there are 2 fissures in the right lung, 1 fissure in the left lung. I will tell you in later one. Now coming to the in detail. Parietal pleura जो है in detail में पूछता है कि short notes में 4-5 marks में कि parietal pleura और sometimes they will ask pleura only. Okay, so आपको लिखना पड़ेगा coastal pleura के in detail के बारे में, इसके बारे में सारी चीज. अब चलो ये समझो. Coastal pleura जो ये है, ये this is the coastal pleura up to here. You can see this is the coastal pleura up to here. This first rib up to here. So now coastal pleura जो किसको लाइन करता है? So it lines the sternum. Sternum को लाइन करता है, covers करता है ribs को, intercostal muscles को, and side of the vertebral bodies. Okay, and separated from the above structure by the endothoracic fascia. अब endothoracic fascia आप लोग पढ़े होंगे thoracic wall में. This is the thoracic wall. Thoracic wall के जो ये जो पार्ट है, ये बड़ा पार्ट, इसका नाम है endothoracic fascia. अब endothoracic fascia को हटाइएगा, then you will get the parietal pleura. If you remove the parietal pleura, you can get the visceral pleura. This is the visceral pleura representation. Okay, so you can see this endothoracic fascia which separates this coastal pleura from the thoracic wall. Okay, what I have mentioned here, this word. Now coming to the boundaries or the coastal pleura relations. So now you can see here from this diagram. Now you can see this is the sternum. So anteriorly this is the sternum. This is the coastal pleura. Okay, this is the coastal pleura here. So up to here.
So this anteriorly is the sternum, then posteriorly is the vertebral body. You can see side of the vertebral body तक यहाँ तक extend हो रहा है costal pleura. So posteriorly is the side of the vertebral bodies. Then next is the anteriorly, posteriorly, what I have mentioned here, vertebral column or vertebral body below, above and below. Now you can see from this diagram, this costal pleura above continuous as cervical pleura, and below means here this costal pleura continuous as the diaphragmatic pleura. So can you tell the relations of the costal pleura anteriorly? What is the relation? Sir, anteriorly it lies in the sternum. Anteriorly is the Posteriorly vertebral column. Yes, vertebral body and vertebral Above column. continuous as cervical pleura. And below continuous as Cervical pleura, diaphragmatic yes. pleura. And below continuous as the diaphragmatic pleura. Yes. So you are going to write in your exam these things. What I have mentioned in the PPT. These are the things you are going to write in your exam or the short questions. Now coming to the next pleura is the mediastinal pleura. So mediastinal pleura, its name indicates, listen here, mediastinal pleura, its name indicates it covers the lateral aspect of the mediastinum. This is the mediastinum. This is the potential space between the two lungs. इसी को बोलते हैं mediastinum. Okay. So now इसका जो mediastinum का जो ये है lateral aspect है, तो lateral aspect जो cover करके रखता है parts of the parietal pleura, and that is called the mediastinal pleura. Now this mediastinal pleura superiorly it continues as cervical pleura. Are you getting my points? What I am telling? This mediastinal pleura above it continues as Cervical pleura. Yes, and below it continues as Diaphragmatic pleura. Diaphragmatic pleura. yes. Now you can see here this mediastinal pleura up to here, coming here up to here, and this mediastinal pleura is the part of the parietal pleura. So what I told earlier for the visceral pleura, when it covers the whole the substance of the lung except the area root and hilum of the lung. This is the root area and hilum of the lungs area, except here this area which covered by the visceral pleura. यहाँ पे आकर क्या हो जाता है? This visceral pleura continues as the mediastinal part of the parietal pleura, or you can say what I have mentioned here. It is reflected over the root of the lung and becomes continuous with the visceral pleura around the hilum or root of the lungs. Same thing you mentioned here. This visceral pleura at the root or hilum of the lung, it continues as parietal pleura, or you can say parietal pleura continues as visceral pleura at the around the root or the hilum of the lungs. Now what I have told here, this is the, you can see here, this is the visceral pleura and this is the parietal pleura parts. Okay, so now we can see here in this point hilum at the root or hilum of the lungs. You can see this visceral pleura continues as parietal pleura, mediastinal part of the parietal pleura, and this mediastinal part of the parietal pleura continues as the visceral pleura at this hilum or root of the lungs. Now coming to another thing here, also you can see here, this is the hilum or root of the lungs structures. You can see, I will teach you later on. Today only you can see this is the root structures or hilum structures of the lungs. In this part here you can see this is the parietal pleura, and this parietal pleura continues as the visceral pleura or visceral pleura continues as the parietal pleura in this part. Now again you can see here, this is the pulmonary ligament. Here you can see below extension of this parietal pleura, this folded with each other and downward extension, that is called the pulmonary ligament. I will tell you today only what is the pulmonary ligament. Now you can see the pulmonary ligament, that is the double folded. What is the pulmonary ligament? So these all are this parietal pleura. You can see this is the parietal pleura surrounding the root of the
root of the lung. You can see this is the root of the lung and extends downward beyond the root of the lung, and that is folded with each other, and which is called the pulmonary ligament. This fold contains the thin layer of the loose alveolar tissue, or you can say simply, what is the pulmonary ligament? That is the areolar tissue. Areolar tissue. You can say also the pulmonary ligament is the loose areolar tissue, or you can say the areolar tissue, and consists of few lymphatics also here in this areolar tissue. Okay, so what is the function of this pulmonary ligament? So it provides a dead space into which this is the pulmonary vein here, and this pulmonary vein can expand during the increased venous return during the exercise. ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस जो है प्रोवाइड करता है ये एक्सपांशन करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए ये हेल्प करता है. When the pulmonary veins expand, that during the exercise, and this pulmonary ligament, or this is also called the dead space here, that dead space helps the expansion of the pulmonary vein during the exercise. तो आपको याद रखना है, ये पेराइटल प्लूरा जो था, दोनों पेराइटल प्लूरा, यहाँ पे देखो ये डायग्राम अच्छे से दिखता है. देखो यहाँ पे ये रूट है, ये रूट ऑफ द लंग्स है ये, और यू कैन सी दीज ऑल आर द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइलम आल्सो. यू कैन सी ये पेराइटल प्लूरा जो कवर करके आया, यहाँ पे देखो पेराइटल प्लूरा itself double folded layer here. Okay, it extends downward from the root of the lungs, and this extension जो है ये parietal pleura का folding जो है, that is folding called the pulmonary ligament, or you can say the loose areolar tissue. It also made up of consists of the few lymphatics also. Now coming to next thing is the diaphragmatic pleura. This is the third part of the parietal pleura. You can see here, this is the diaphragmatic pleura, and what I told here earlier, this diaphragmatic pleura covers the superior surface of diaphragm. You can see this is the superior surface of diaphragm that is lined by the diaphragmatic pleura. It covers the base of the lungs. You can see here, this is the base of the lungs. So it also covers the base of the lungs and gets continuous with the mediastinal pleura. You can see this diaphragmatic pleura continuous with the mediastinal pleura medially. You can see this is called the medially, and this diaphragmatic pleura continuous as costal pleura laterally. So medially जो है diaphragmatic pleura continuous as mediastinal pleura, and the diaphragmatic pleura laterally continuous as the costal pleura. Okay, understood how it continues as the mediastinal pleura and the costal pleura? Are you getting my point? What I'm telling Yes, here? sir. Yes, बोलो sir. इसमें कैसे होता है diaphragmatic pleura के बारे में क्या लिखोगे? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है. Sir, medially it continues as mediastinal pleura and costally pleura, costal pleura. Yes, costal pleura. Now coming to the last pleura, that is the fourth part of the cervical pleura is the fourth part of the parietal pleura. तो आप चलो cervical का meaning होता है that is the covers the apex of the lungs. Apex of the lungs को cover करके रखता है, and that is the cervical pleura, which is the part of the parietal pleura. And जो shape बनाता है, that is called the dome of the pleura, and that is called the pleural copula. I will mention here. Here you can see this is the apex of the lungs. You can see this is the apex of the lung that is covered by the cervical pleura, which is the part of the parietal pleura. तो ये जो अपेक्स को जो यहाँ पे जो डोम जैसा बना रहा है ना, अपेक्स ऑफ लंग्स को कवर करके ये डोम जैसा, ये डोम एरिया जो दिख रहा है, ये शार्प एरिया, इसका नाम है कोपुला. प्लूरल कोपुला बोलते हैं. नाउ ये जो है एक्सटेंड कहाँ से कहाँ होता है? तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन बता रहा हूँ. नाउ यू कैन सी इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दिस cervical pleura, extends from inner
border of the first rib. You can see inner border of the first rib. Also, you can see here also it extends from inner border of the first rib to the apex of the lungs. You can see inner border of the first rib. This is the inner border of the first rib to the apex of the lung. So this area is called the cervical pleura. This extends into the neck. Okay, our neck nearly 5 centimeter above the first costal cartilage. You can see this is called the first costal cartilage. So from here it lies 5 centimeter above. 5 centimeter above. देखो यहाँ से मेजर करके फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से तो 5 सेंटीमीटर अबव. आप चलो क्लेविकल के एस्पेक्ट में मीडियल 1/3 क्लेविकल रहेगा. यहाँ पे मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल तो उसके 2.5 सेंटीमीटर अबव एंड दैट व्हिच कवर द अपेक्स ऑफ द लंग्स. तो आपको ये चीज जनरली पूछता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में कि ये जो पोस्ट कोस्टल कार्टिलेज था, पोस्ट कोस्टल कार्टिलेज से हाउ मच सेंटीमीटर अबव लाइज होता है सर्वाइकल प्लूरा. तो 5 सेंटीमीटर. अब जो क्लेविकल का जो होता है पार्ट मीडियल 1/3 का जो क्लेविकल होगा, मीडियल 1/3 क्लेविकल का बस ओनली द 2.5 सेंटीमीटर अबव. ये जो है व्हिच कवर द अपेक्स ऑफ द लंग्स एंड दिस इज कॉल्ड द सर्वाइकल प्लूरा एंड इट इज आल्सो कवर्ड बाय द सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन. यहाँ पे एक सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन भी होता है दैट कवर्स द सर्वाइकल प्लूरा. आपको ये चीज बताऊंगा यहाँ पे, अभी बाद में आएगा यहाँ पे. अब चलो ये जो दिख रहा है रिलेशंस ऑफ द सर्वाइकल प्लूरा. तो रिलेशंस में इसका रिलेशंस होता है एंटीरियरली क्या होगा, पोस्टीरियरली क्या होगा, लैटरली क्या होगा, मीडियली क्या होगा. तो आपको एंटीरियरली सी हियर ये सर्वाइकल प्लूरा है. देखो दिस इज द सर्वाइकल प्लूरा एंड सर्वाइकल प्लूरा का एंटीरियरली लाइज होगा दैट इज द सबक्लेवियन आर्टरी. आपको एक ही चीज याद रखने से चलेगा. एंटीरियरली देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, पोस्टीरियरली देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द neck of the first rib, and laterally this is not mentioned here in this diagram. Laterally there is the presence of scalenus medius muscle and medially there is the presence of great vessels of the neck. So please everyone, if you forget about this laterally and medially, no problem, but you are going to write these two things. Anteriorly there is the presence of subclavian artery and posteriorly there is the presence of neck of the first rib. आपको इतना चीज लिखना पड़ेगा एग्जाम में. आप चलो ये जो दिख रहा है ये फेसिया, ये फेसिया का नाम है सिप्सन्स फेसिया. ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं. सिप्सन्स फेसिया क्या है? तो इट अटैचेस टू द इनर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब. यहाँ देखो it attaches the inner border of the first rib below and the transverse forces of the 7th cervical vertebra above. यह सिप्सन्स फेसिया का एक्सटेंशन है यहाँ से यहाँ तक. अब दिस फेसिया सिप्सन्स फेसिया आल्सो कॉल्ड द सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन. तो आपको चलो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि दिस सर्वाइकल प्लूरा यहाँ पे देखो इट इज कवर्ड बाय द सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन. ये सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सिप्सन्स फेसिया. सिप्सन्स फेसिया कहां से कहां एक्सटेंड होगा? इनर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब टू द ट्रांसवर्स फोर्सेस ऑफ C7 vertebra. Okay, and about this thing, this is the most important thing. This Siphons fascia or the suprapleural membrane consists of or made up of two structures. One is the musculo and the facial. Okay, facial expansion and muscular expansion. So that is commonly called the musculofacial expansion. So muscular part of the Siphons fascia derived from the or originated from the scalenus medius, and facial part derived from the endothoracic fascia. Endothoracic fascia आपको दिखाया था, which lies just inner aspect of the thoracic wall. Inner aspect of the thoracic wall उसको बोलते हैं endothoracic fascia. तो आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा. Siphons fascia made up of two structures. One is the muscular part and the facial part. Muscular part is derived from the scalenus medius muscle
and facial part derived from the endothoracic fascia. So please everyone, you must know about this Gibson fascia. Now coming to the another things is the recesses of pleura. This is the most important topic for your exam purpose. Okay, recesses of pleura. So there are, you must know, lungs do not occupy the pulmonary cavities completely during the expiration. So what happens there? There are two recesses of parietal pleura. The recesses of the pleura, that is the parietal pleura, which act as the reserved space for the lung to expand during the deep inspiration, and these gaps are called the pleural recesses. We can see in this diagram here. You can see this is the costal pleura, this is the costal pleura, and this is the diaphragmatic pleura. Okay, and in between this there is the pleural cavity present, and that is called the costodiaphragmatic recess. This is the extension of the parietal pleura itself. You can see this is the costal pleura, this is the diaphragmatic pleura. In between this there is the location of the costodiaphragmatic recesses. Okay, so now coming to the costomediastinal recess. कहाँ पे होता है? देखो सी, ये कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस जो है पोस्टीरियरली होता है. यहाँ पे देखो कोस्टोमीडियास्टिनल, सॉरी एंटीरियरली होता है. दिस इज द कोस्टल प्लूरा, दिस इज द कोस्टल प्लूरा, दिस इज द स्टर्नम एंड दिस इज द मीडियास्टिनल प्लूरा. एंड यहाँ पे देखो यही है, ये कोस्टल प्लूरा एंड मीडियास्टिनल प्लूरा के बीच में जो एक्सटेंशन और यहाँ पे कैविटी बन रहा है, यहाँ पे ये रिसेसेस बन रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड द कोस्टोमीडियास्टिनल प्लूरा. Costomediastinal recesses of pleura. Costomediastinal recesses of pleura. आपको याद रखना है ये एंटीरियरली लाइज होता है, ये एंटीरियरली लाइज होता है. एंटीरियरली याद रखो अपने बॉडी में थोरैसिक वॉल के, देखो ये रिब्स जो कवर कर रखते हैं यहाँ पे, देखो दिस इज द कोस्टल एंड दिस इज द मीडियास्टिनम को जो कवर कर रखता है मीडियास्टिनल प्लूरा. ये दोनों को बीच में जो रिसेस बन गया प्लूरा का रिसेस, दैट इज कॉल्ड द कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस ऑफ प्लूरा. नाउ this lies anteriorly. आपको याद रखिए प्लीज एवरीवन, लिसन एवरीवन केयरफुली. दिस इज द स्टर्नम. तो आपको याद रखना है ये जो कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस ऑफ प्लूरा है, दैट इज फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट, एंटीरियरली. अब चलो ये कोस्टोडायफ्राम रिसेस ऑफ प्लूरा, ये देखो सर वहाँ पे, एक्सक्यूज मी सर, यस सर वहाँ पे तो कार्विकल प्लूरा है ना, जो कोस्टोमेडियल रेसेस ऑफ प्लूरा फॉर्म हो रहा है. यहाँ पे मीडियास्टिनल है, ऊपर में तो कार्विकल प्लूरा होना चाहिए ना सर? नहीं नहीं नहीं, कोस्टोमेडियल रेसेस ऑफ प्लूरा में नहीं, ये अपेक्स ऑफ लंग्स थोड़े ना, ये अपेक्स ऑफ लंग्स नहीं है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लंग्स का ट्रांसवर्स सेक्शन है. ओके, ये सर्वाइकल प्लूरा नहीं है. आपको ये ट्रांसवर्स सेक्शन, थोरैसिक कैविटी जो है उसको ट्रांसवर्स सेक्शन लिया. ओके, ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद जो है यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे देखो ये कोस्टल प्लूरा है, दिस इज द मीडियास्टिनल प्लूरा. दोनों को यहाँ पे जो दोनों से फॉर्म हो रहा है एक कैविटी टुवर्ड्स द एंटीरियर एस्पेक्ट, एंड दैट इज कॉल्ड द कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस ऑफ प्लूरा. तो आपको दो चीज याद रखना है. एक पॉइंट कि कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस ऑफ प्लूरा एंटीरियरली फॉर्म होता है, और जो कोस्टोडायफ्रागमेटिक रिसेस ऑफ प्लूरा जो फॉर्म होता है बिलो होता है, इंफीरियरली. देखो इंफीरियरली फॉर्म हो रहा है, और जो ये जो है, ये जो यहाँ पे जो रिसेस बनता है यहाँ पे, ये वाला नहीं बता रहे, ये वाला नहीं है, ये तो सैजिटल सेक्शन का है, ये कॉर्नर सेक्शन वाला है, ये ट्रांसफर सेक्शन में याद रखना है. ओके, ये जो है कॉर्नर सेक्शन में जो है यहाँ पे देखोगे तो डायफ्रागमेटिक प्लूरा एंड कोस्टल प्लूरा के बीच में जो यहाँ बिलो यहाँ एक्सटेंशन हो रहा है पैरेटल प्लूरा का, इसी का नाम है कोस्टोडायफ्रागमेटिक रिसेस ऑफ प्लूरा. आप चलो इसका डिटेल में चलो, आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा एग्जाम में. तो आपको ये सारे पॉइंट्स हम लिखना पड़ेगा. कोस्टोडायफ्रागमेटिक रिसेस सबसे पहले लाइज किसके बीच में होता है, कहाँ लाइज होता है, एंटीरियरली होता है या इंफीरियरली होता है? तो कहाँ लाइज होता है बताओ. अब किसके बीच में? इंफीरियरली कोस्टोडायफ्रागमेटिक प्लूरा के बीच में लाई करता है. हाँ, तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा, इट लाइज इंफीरियरली. उसके बाद फिर लिखना है नेक्स्ट सेंटेंस, इट लाइज बिटवीन द
coastal and the diaphragmatic pleura. Now coming to next thing, this is the 8th rib. ये जो दिख रहा है ये 8th rib है, ये यहाँ पे 10th rib है, ये तो ये 8th rib से 10th rib तक ये एक्सटेंशन होता है, vertically extension. It measures vertically, it measures about 5 centimeter. 5 centimeter extends from the 8th rib to the 10th rib and along the mid axillary line. Along the mid axillary line. आपको और चीज याद रखना है, ये देखो जब इंस्पिरेशन लो, इंस्पिरेशन के टाइम में क्या होता है, लॉन्ग्स एक्सपांड करेगा, ये देखो तो लॉन्ग्स का पार्ट होता है ये स्पेस तक भर जाता है, ये जो राइट लॉन्ग्स का जो इंफीरियर पार्ट होगा, इंफीरियर पार्ट यहाँ तक आ जाता है। तो ये जो रिसेस है, रिसेस का काम क्या करता है ये, तो देखो इट मेक्स अ प्रोविजन टू अलाउ द एक्सपेंशन ऑफ द लॉन्ग इन फुल इंस्पिरेशन। फुल इंस्पिरेशन के टाइम में जो ये जो रिसेस बन रहा था वो फिल हो जाता है, यहाँ पे राइट लॉन्ग का पार्ट जो है यहाँ तक आ जाता है। देन दिस इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द प्लूरल सैक। प्लूरल कैविटी का जो ये पार्ट है बहुत मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द प्लूरल सैक बोलते हैं इसको। ये पॉइंट आपको याद रखना है कोस्टो डायफ्रैगमेटिक रिसेस ऑफ प्लूरा के बारे में। अब चलो कोस्टो मीडियास्टिनल रिसेस ऑफ प्लूरा में तो 2 सेंटेंस बताओ, कोस्टो मीडियास्टिनल रिसेस के बारे में 2 चीज बताओ। मैंने क्या क्या बताया था अभी, लाइज कहाँ होता है, एंटीरियरली। एंटीरियरली, हाँ किसके किसके बीच में लाइज होता है, बिटवीन द सर एंटीरियरली बिहाइंड द स्टर्नम लाइज होता है। नहीं किसके किसके बीच में लाइज होता है, posteriorly in front of rib vertical column. नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि दिस Two रिसेस lungs, between two lungs. नहीं 2 प्लूरा के बीच में कौन सा प्लूरा के बीच में, ये इसका नाम क्या है, नहीं ये प्लूरा मीडियास्टिनल प्लूरा, हाँ ये कोस्टल प्लूरा है, दिस इज द मीडियास्टिनल प्लूरा। इसी का एक्सटेंशन जो है ना बीच में, ये जो बीच में फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड द कोस्टो मीडियास्टिनल रिसेस ऑफ प्लूरा। आपको 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने बोल दिया हूँ, आपको याद रखना है एंटीरियरली लाइज होता है, ये तो थोड़ा ये तो बिहाइंड द स्टर्नम तो हो ही जाता है, कोस्टल कार्टिलेज के बिहाइंड ये हो जाता है। अब ये किसके किसके बीच में लाइज होता है, तो कोस्टल एंड मीडियास्टिनल प्लूरा के बीच में लाइज होता है, ओके, and that particularly in relation to the cardiac notch of the left lung. Now this recess is filled up by the anterior margin of the lung. Even during the quick breathing, it is only obvious in the region of the cardiac notch of the lung. And left recess is larger because of the cardiac notch. अब ये डायग्राम में देखो, ये देखो यहाँ पे जो यहाँ पे होता है कार्डियक नोच, लेफ्ट साइड में कार्डियक नोच होता है, ओके, तो कार्डियक नोच होता है, इसीलिए जो एंटीरियरली यहाँ पे देखिएगा तो पोस्टो मीडियास्टिनल जो रिसेसिस होता है दैट इज द लेफ्ट रिसेसिस क्या होता है, लंगर होता है। बाद में जो अभी लंग्स पढ़ाने वाला हूँ अभी 5 मिनट के बाद में, तो यहाँ जो है दिखाएंगे तभी, तो आपको यहाँ पे देखिए कार्डियक नोच पे, यहाँ पे कार्डियक नोच होता है लेफ्ट साइड में, और यहाँ देखिएगा तो एंटीरियर साइड में क्या होता है, लेफ्ट रिसेसिस आर मच longer, और you can see here this is the left side, this is the right side, okay, तो लेफ्ट रिसेस जो है थोड़ा सा लंबा दिखा दिया, okay, then the right recess of costomediastinal recess of pleura because of the presence of cardiac notch presence होता है, इसलिए left costomediastinal recess of pleura is longer than the right costomediastinal recess of pleura. Now coming to the development, so parietal pleura is derived from the somatopleuric layer of the lateral plate mesoderm. Visceral pleura derived from the splachnopleuric layer of the lateral plate mesoderm. तो आपको ये पहले याद रखना है। Then nerve supply इस तरीके से आपको लिखना है। Costal and the peripheral part of the diaphragmatic pleura supplied by the intercostal nerves. Mediastinal and central part of the diaphragmatic pleura supplied by the phrenic nerve, and then visceral pleura by the vagus and sympathetic rhythm. ये सब आपको याद रखना है, लर्न करना है। ब्लड सप्लाई में भी आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, तो पेराइटल प्लूरा को सप्लाई करता है इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। देन विसरल प्लूरा को सप्लाई बाय द ब्रोंकियल आर्टरी। नाउ कमिंग टू द वेनस ड्रेनेज,
पेरेटल प्लूरा का जो वेनस ड्रेनेज होता है एजागस वेन, देन इंटरनल थोरेसिक वेन में, देन विसरल प्लूरा का जो है ब्रोंकियल वेन में। यहाँ ब्रोंकियल आर्टरी था, ब्रोंकियल वेन में, ये चीज याद रखना है। नाउ द क्लिनिकल एनाटॉमी, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है प्लूरा के बारे में, क्लिनिकल एनाटॉमी, पैरासेंटेसिस थोरेसिस। ये पैरासेंटेसिस थोरेसिस क्या होता है कि aspiration of any fluid from the pleural cavity is called the paracentesis thoracis. It is usually done in the eighth intercostal space in the mid-acute line, and वहाँ पे क्या करता है, the needle is passed through the lower part of the space to avoid injury to the vein structure, vein, artery and nerve structure, neurovascular bundle बोलते हैं इसको। ये देखो इसको aspiration of the pleural effusion, यहाँ पे फ्लूइड यहाँ पे कलेक्शन हो जाता है, एक्सप्रेशन करते हैं, उसको बोलते हैं पैरासेंटेसिस थोरेसिस। ये कौन सा रिसेस होता है, यहाँ पे कौन सा रिसेस होता है बताओ? कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस होता है। हाँ, यस, वेरी गुड, कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस। प्लूरा में यहाँ पे जो फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको एस्पिरेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैरासेंटेसिस थोरेसिस, पैरासेंटेसिस थोरेसिस। और अदर इन द प्लूरल कैविटी, कहीं पे भी प्लूरल कैविटी में फ्लूइड जमा हो गया तो कल उसको जो एस्पिरेशन करते हैं उसको प्रोसीजर का नाम है दैट इज कॉल्ड द पैरासेंटेसिस थोरेसिस। नाउ अब सम इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशंस है यहाँ पे। प्लूरिसाई मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा, ओके। और वहां पे जो ये प्लूरल कैविटी में जो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाता है दैट इज कॉल्ड द प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन के बारे में और बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। निमोथोरैक्स, निमो मतलब होता है एयर, तो प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी दैट इज कॉल्ड द निमोथोरैक्स। हीमो मींस होता है ब्लड, जो ब्लड जमा हो गया प्लूरल कैविटी में दैट इज कॉल्ड द हेमोथोरैक्स। हाइड्रोनिमोथोरैक्स, हाइड्रो मींस द फ्लूइड एंड द एयर, ओके। हाइड्रोनिमो मींस एयर एंड फ्लूइड, सो फ्लूइड एंड एयर इन द प्लूरल कैविटी में जमा हो गया तो उसको बोलते हैं हाइड्रोनिमोथोरैक्स। इम्पाइमा मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ पॉस इन द प्लूरल कैविटी। आपको ये पॉइंट्स हम सारे चीज लर्न करना है क्लिनिकल एनाटॉमी में, ये प्लूरा के बारे में। नाउ और थोड़ा सी बताऊंगा प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। तो आपको याद रखना है प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, ये व्हेन फ्लूइड कलेक्ट्स इन द कोस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस, द कोस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस एंगल क्या होता है, ये ऑब्लिटरेटेड हो जाता है एंड इट इज सीन एज रेडियो ओपेक शैडो of fluid line on the X-ray chest. I will show in this diagram. यहाँ पे देखो, ये देखो, ये नॉर्मल लंग्स है, देख रहे हो, यहाँ पे कोस्टो डायफ्रामेटिक एंगल बोलते हैं, यहाँ पे कोस्टो डायफ्रामेटिक एंगल यहाँ भी दिख रहा है अच्छा से, तो ये नॉर्मल लंग्स बोलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में कोस्टो डायफ्रामेटिक एंगल जो है ये दिख रहा है, कोस्टो टेक्निक एंगल भी बोलते हैं इसको, कोस्टो डायफ्रामेटिक एंगल। देन यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे इतना स्पेस खाली हो गया, नहीं दिख रहा है अच्छा से, तो यही पॉइंट मैंने बोला हूँ कि इफ देयर इज द डायफ्रामेटिक एंगल जो है ऑब्लिटरेटेड मतलब नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन राइट साइड में होता है, यहाँ पे राइट साइड में हुआ है यहाँ इस चेस्ट एक्सरे में। नाउ प्लूरल इफ्यूजन कभी कभी क्या करता है, इज वन ऑफ द साइन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द लंग्स, ये भी मेंशन होता है। देन दूसरा वर्ड बोला था पल्मोनरी इम्पाइमा। इम्पाइमा मतलब क्या बोला था, पॉस, पॉस दैट इज प्रेजेंट इन द प्लूरल कैविटी, ओके, दैट इज कॉल्ड द इम्पाइमा। कभी कभी कोलैप्स लंग हो जाता है, देखो राइट साइड नॉर्मल है, लेफ्ट साइडेड स्मॉलर हो गया तो इसको बोलते हैं कोलैप्स लंग। देन हेमोथोरैक्स, यू कैन सी ब्लड in the pleural cavity, that is called the pneumothorax. I already told. तो आपको बारे में, आपको जो है यहाँ प्लूरा के बारे में पढ़े हैं। What are the parts of the, what are the layers of the pleura? What are the layers of the pleura? बोलो। Hello. Two layer, outer layer and inner layer. Outer layer is called as parietal pleura and inner layer is called visceral or pulmonary pleura. Yes. And what are the parts of the parietal pleura? 4 parts. So what are the 4 parts of the parietal pleura?
Coastal pleura, then Yes. diaphragmatic pleura, cervical pleura, and mediastinum pleura. Yes. Then coming to the next thing is the Simpson's fascia. So Simpson's fascia कहाँ से कहाँ extend होता है? Or also called the Simpson's fascia is also called the suprapubic transverse portions of C7 vertebra T7 T1 Yes. से लेके upper inner border of first rib. Very good. Inner border of the first rib. अब what are the two recesses of the pleura? Two recesses का नाम बताओ. Two recesses. Two recesses of pleura. कोस्टोमेडिस्टिनल रेसिस और कोस्टोडायफ्रामेटिक रेसिस. Yes. अब चलो कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस ऑफ प्लूरा के बारे में 3 पॉइंट्स बताओ. 3 पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट लाइज कहाँ होता है? कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस ऑफ प्लूरा Between 8 to 10 vertebrae. नहीं नहीं नहीं, ये सबसे पहले तो ये बोलना पड़ेगा कि लाइज कहाँ होता है? इंफीरियरली. कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस ऑफ प्लूरा कहाँ पे लाइज होता है? इंफीरियरली, बिलो होता है ना. याद है या भूल गई? याद है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, यू आर गोइंग टू राइट बिटवीन कौन सा प्लूरा, इसी के नाम से बताना है. बिटवीन टू प्लूरा, Coastal and diaphragmatic. यस यस. कोस्टल एंड डायफ्रामेटिक प्लूरा. यस, आप थर्ड पॉइंट लिखना है. इसका कितने सेंटीमीटर एक्सटेंशन होता है वर्टिकली, कहां से कहां तक? 5 सेंटीमीटर. हाँ, वर्टिकली 5 सेंटीमीटर. कहां से कहां? 8 to 10 rib. 8 to Longer 10. यस, तो आपको ये चीज बोलना है. और जो है कोस्टोमेडिस्टिनल रिसेस ऑफ प्लूरा में, कोस्टोमेडिस्टिनल रिसेस ऑफ प्लूरा लाइज कहां होता है? 3 पॉइंट बताओ इसके बारे में. Sir, lies anteriorly to sternum, behind the sternum, and costal cartilage. यस. अब बिटवीन कौन सा प्लूरा? Coastal and mediastinum pleura. यस, कोस्टल एंड द mediastinal pleura. आप ये जो कार्डियक नोच होता है लेफ्ट साइड में, इस तरीके से क्या होता है? व्हिच रिसेस लॉन्गर होता है? व्हिच Yes, रिसेस sir. इज लॉन्गर? व्हिच रिसेस? कोस्टोमेडिस्टिनल रेसिस लॉन्गर होता है. कौन सा साइड का? लेफ्ट साइड का. लेफ्ट साइड का, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नोच, इसलिए थोड़ा दूर तक जाता है, तो इसी को बोलते हैं लॉन्गर. तो आपको ये चीज सब सारे चीज मेन ध्यान रखना है. ओके. प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है? प्लूरल इफ्यूजन में जो हमारा लंग का एंगल है वो दिखाई नहीं देता. क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? Costodiaphragmatic angle से दिखाई नहीं देता है. हाँ, तो क्यों नहीं होता है? Excessive fluid in pleural cavity. फ्लूइड भर जाता है लंग्स की कैविटी में. हाँ, प्लूरल कैविटी जो है ना, वो रिसेस में, कोस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस ऑफ प्लूरा में क्या होता है कि वहां पे जाके फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है. फ्लूइड, ठीक है. तो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसीलिए नहीं दिखता है, ऑब्लिटरेटेड हो जाता है चेस्ट एक्सरे में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे नेक्स्ट प्लूरस, ये इम्पाइमा मतलब क्या होता है? इम्पाइमा, Sir, pleural cavity में पल्स बंद हो जाता है. यस. हेमोथोरैक्स मतलब क्या होता है? हेमोथोरैक्स, तो ब्लड Blood ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है. यस. निमोथोरैक्स मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लड. यस. हाइड्रोनिमोथोरैक्स मतलब क्या होता है? हाइड्रोनिमोथोरैक्स, Sir, blood fluid और एयर भर जाता है. यस. वेरी गुड. नाउ आप प्लूरा के बारे में पढ़ लिए हैं. अब प्लूरा के बाद में जो है सबसे अनदर सर इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन टॉपिक है. है लंग्स. यस, सर कैन आई? एक क्वेश्चन है, जो पैराइटल लेयर से एक्सटेंड हो रही है ना लिगामेंट, पल्मोनरी लिगामेंट, yes. सर वो तो सर रूट ऑफ द लंग्स से एक्सटेंड हो रही है, तो वहाँ पे तो विसलर लेयर भी रहेगा ना उस लिगामेंट में, जो पैराइटल लिगामेंट. नहीं, वहां पे जाके देखो, विसरल प्लूरा जो है वहां पे एंड हो जाता है, और जो वहां पे जो पैराइटल प्लूरा घूम के आ रहा है दोनों तरफ से. ओके. तो पैराइटल प्लूरा जो है वही नीचे तरफ एक्सटेंशन हो जाता है, डाउनवर्ड एक्सटेंशन होता है फ्रॉम द रूट ऑफ द लंग और हाइलम ऑफ द लंग.
तो वही डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द पैराइटल प्लूरा का जो फोल्डिंग है ना, फोल्डिंग, डबल एयर फोल्ड ऑफ द Yes, sir. पैराइटल प्लूरा, downward the this root and the hilum of the lung, तो उसी को एरिया को बोलते हैं that is the pulmonary ligament, और that is made up of, कुछ नहीं है उसमें बस लूज एरोलर टिश्यू है, लूज एरोलर Yes, sir. अभी दिखाऊंगा ना लंग्स में और आ रहा है ये, अभी फिर से स्ट्रक्चर दिखाएंगे उसके बारे Okay, में। sir. तो चलो लंग्स के बारे में, यू कैन सी लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन सा कैविटी में प्रेजेंट होता है, बताओ लंग्स कौन सा कैविटी में प्रेजेंट होता है, Pleural cavity. कौन सा कैविटी, Thoracic cavity. thoracic cavity में, yes thoracic cavity में। तो you can see here this is the right lung, this is the left lung, okay। अब lungs क्या है, what is lungs, तो आपको डेफिनेशन बोलना पड़ेगा, lungs are a pair of respiratory organ, बस इतना, are a pair of respiratory organ। अब लोकेशन क्या होता है, तो situated in the thoracic cavity। अब इसका टेक्सचर कैसा होता है, तो स्पॉन्जी इन टेक्सचर, कलर कैसा होता है, तो ब्राउन और ग्रे कलर होता है। अब इसका वेट हम लोग नापेंगे नॉर्मल लंग्स का, तो 700 ग्राम होता है राइट लंग का वेट, एंड 600 और 650 से 600 टू 650 तक होता है लेफ्ट लंग, ओके। आपको इतना याद रखना है। तो कौन सा लंग्स हेवियर होता है, तो राइट लंग, तो राइट लंग हेवियर होता है कितने से, तो 50 to 100 ग्राम हेवियर देन द लेफ्ट लंग। तो आपको ये इंट्रोडक्शन था ऑफ लंग्स का। आप चलो फीचर्स, अब सर लेफ्ट लंग्स तो लॉन्गर होती है ना, तो फिर राइट लंग्स हेवियर क्यों होती है? ना अभी आ रहा है क्वेश्चन, हम सारे चीज आ रहा है, ये हेवियर बता रहा हूं। ओके सर। हेवियर लंगर में हाँ सर। नाउ द Okay, फीचर्स ऑफ द लंग्स में, फीचर्स ऑफ द लंग्स में देखो तो शेप कैसा होता है लंग्स का, कोनिकल शेप होता है, ओके। कोनिकल शेप, यू कैन सी हियर दिस द कोनिकल शेप, ये कोन जैसा बना रहा है, देखो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े थे कोन, तो इसका शेप होता है कोनिकल। तो कोनिकल शेप होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ, ये देखो इट कंसिस्ट ऑफ अपेक्स एंड बेस। आपको दो चीज बोलना है, दिस लॉन्ग्स कोनिकल शेप है, इसीलिए इट कंसिस्ट ऑफ अपेक्स, दिस इज द बेस, दिस इज द बेस, up to here this is the base. Now next thing is it consists of two surfaces, that is the postal surface and medial surface, and again medial surface consists of divided into the two parts, vertebral part and mediastinal part, okay। And then it consists of three borders, anterior border, posterior border and inferior border. I will show in the diagram also, just listen here, just you can see here, see here, this is the right lung, this is the left lung. So in the right lung normally you can see there is the presence of two fissures, this is the oblique fissure, this is the oblique fissure, and this is the horizontal fissure, two fissure, and this two fissure is divided the right lung into the three lobes, this is the upper lobe, this is the middle lobe, and this is the lower lobe. Now coming to the left lobe, left lung, there is the presence of only one fissure, that is the oblique fissure, which divides the whole lungs into the two lobes. This is the upper lobe and this is the lower lobe. In the left side or left lung, you can see there is the presence of cardiac notch, cardiac impression होता है यहाँ पे lungs में, left lung में. So just below the cardiac notch, there is the presence of tongue-like appearance or tongue-shaped projection, okay, tongue-shaped projection, and that is called the lingula, and which is present just below the cardiac notch. I will show in the specimen also. Here you can see this is the left lung, this is the left lung. You can see here this is the cardiac notch, okay, cardiac notch, and here you can see just below the cardiac notch here, and this is the tongue-like projection, okay, tongue-shaped projection, and which is called the lingula. Now next thing, practically what are the points helping the side determination of the lungs? तो आपको याद रखना है अपेक्स कहाँ रखना है, आपको प्लेस्ड अपवर्ड डायरेक्शन अबव, बेस कहाँ रखना है बिलो,
देन एंटीरियर बॉर्डर कैसा होता है, शार्प होता है, थिन होता है, प्लेस्ड एंटीरियर। पोस्टल सरफेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, प्लेस्ड laterally। एंड mediastinal पार्ट जो होता है that contain the हाइलम, रूट्स एंड स्ट्रक्चर्स, ओके, एंड प्लेस्ड medially। तो ये पॉइंट्स हम सारे जो है आपको प्रैक्टिकली साइट डिटरमिनेशन में हेल्प करता है। तो ये और क्या क्या है और डिटेल में चलो, ये देखो, ये देख रहे हैं, ये दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। ये देखो, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। ये देख रहे हो, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। एंड ये देखो, ये वाला, ये देख रहे हो इंफीरियर में, ये यहाँ से यहाँ तक, ये दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर। तो कितने बॉर्डर हो गया बताओ, हाउ मेनी बॉर्डर्स, लॉन्ग्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बॉर्डर्स? posterior, inferior or anterior. Yes. So what is the name of this border? What is the name of this border? Inferior border. Yes. Now this border is Anterior border. anterior border. Anterior border. Anterior border is sharp and thin and placed, must be placed in anterior side। आपको anterior side में रखना है, आपके बॉडी के anterior side में रखना है, इसको प्लेस करना है। पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है इल डिफाइंड होता है, थोड़ा मोटा सा होता है, थिक होता है, ये पोस्टीरियरली रखना है इसको। अब ये देख रहे हो, ये हाइलम का स्ट्रक्चर है, एंड ये हाइलम जो इस तरीके से कॉमा से बना रहे हैं ना यहाँ पे ये सारे, दिस इज कॉल्ड द रूट ऑफ लंग। ये रूट ऑफ लंग्स है, रूट के अंदर में हाइलम होता है, ये हाइलम का स्ट्रक्चर है। तो दिस इज कॉल्ड द हाइलम एंड रूट ऑफ द लंग। ये प्लेस्ड इन द मीडियल साइड, आपका मीडियल साइड में रखना है इसको। और इसका जो उधर वाला साइड जो होता है कॉन्वेक्स शेप, दैट कॉन्वेक्स शेप प्लेस्ड ऑन द लैटरल साइड, दैट डिटरमाइन द। ये कौन सा लॉन्ग्स हुआ, ये राइट लॉन्ग। ये देखो, राइट हैंड को ये बेस में रखना है, बेस ऑफ द लॉन्ग्स को में रखना है। यहाँ पे देखो, अपेक्स को अपवर्ड रखना है, ये जो बेस है कॉन्केव शेप, इसको बिलो रखना है आपके हैंड में। यहाँ आपको हैंड रखना है, राइट हैंड। अब राइट हैंड में रखो यहाँ पे, ठीक है, राइट हैंड रखो। तो ये देखो एंटीरियरली होल्ड हो गया, ये पोस्टीरियरली होल्ड गया हो गया। ये दिस इज द मिडियल साइड, लैटरल साइड उधर कॉन्वेक्स शेप जो बनाता है वो लैटरल साइड होता है, एंड अपेक्स अपवर्ड हो गया, एंड बेस में क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? Yes sir, समझ गया। Now there are the two fissures present. This is the horizontal fissure and oblique type होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा oblique type में, तो this is called oblique fissure। तो दो fissures डिवाइड करता है 3 लोब में, this is called the upper lobe, middle lobe and this is called inferior lobe। Okay, upper, middle and lower lobe। Now अब लेफ्ट लंग के बारे में चलो बताओ। अब यहाँ पे लेफ्ट लंग, नाउ अब लेफ्ट हैंड में होल्ड करो, देखो लेफ्ट हैंड यहाँ रखो और होल्ड करो इसको, लंग्स को। ये देखो एंटीरियर बॉर्डर शार्प होता है, थिन होता है, कार्डियक नोच भी प्रेजेंट होता है एंटीरियर बॉर्डर पे, ये इसको एंटीरियरली रखना है। देन पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है ये इल डिफाइंड होता है, थिक होता है। एंड देन यू कैन सी मिडियल में जो है, मिडियल जो है यहाँ पे जो है, इसको देखो, देयर आर 2 सरफेसेस जो उधर पीछे की तरफ है, लैटरल साइड में है पोस्टल सरफेस, ये जो है ये पोस्टल एंड मीडियल पार्ट। एंड मीडियल पार्ट का भी जो क्या है 2 पार्ट होता है, एक तो वर्टिब्रल पार्ट होता है, एक ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जितना इंप्रेशन दिख रहा है सारे इंप्रेशन, तो इसका नाम है मीडियस्टिनल पार्ट। तो आपको याद रखना है कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। एंड मीडियल सरफेस कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्रल पार्ट एंड मीडियस्टिनल पार्ट। वर्टिब्रल पार्ट लाइज होता है वर्टिब्रा के साथ में, ओके। और यहाँ जो ये मीडियस्टिनल पार्ट जो है, मीडियस्टिनल पार्ट में आपको हाइलम मिलेगा, रूट्स मिलेगा, ये सारे इंप्रेशन मिलेगा। तो ये इसलिए इसको बोलते हैं मीडियस्टिनल सरफेस और मीडियस्टिनल पार्ट। अब मीडियस्टिनल पार्ट लाइज इन द मीडियल साइड। ये पॉइंट सब हो गया। देयर आर प्रेजेंट सम ओनली वन फिशर, so this fissure is called the oblique fissure, which is divided into the upper lobe and the lower lobe. Here you can see this is the cardiac notch, and cardiac notch is just below is the tongue shape projection, and that is called the lingula। tongue shape projection को क्या बोलते हैं, lingula। Now you can see this is the apex, this is the base here, and this is the hilum and root of the lungs। Here you can see
Okay, and this is the anterior border, and this is the, yeah, this side is the posterior border. ये कौन सा lungs है बताओ? Left lung है. Very good. Very good. Yes. Now coming to this. This is the anterior border. देखो ये specimen है, original specimen है. देखो ये. This is the anterior border. Okay. And posterior side posterior border है. ये हाइलम एंड रूट्स ऑफ द स्ट्रक्चर है यहाँ पे. ये मिडिएस्टिनल सरफेस है और लैटरल सरफेस तो उधर, पोस्टल सरफेस उधर है, पीछे की तरफ है, नहीं दिख पाइएगा यहाँ पे. तो ये कौन सा लंग्स हुआ ये बताओ? Right lung. Yes. And you can see this is the upper lobe, middle lobe, and lower lobe also here. Okay. So now coming to the next thing. This is the which lung? Again. This Sir, is the right lung. right lung. Yes. No, no. How it is left lung? इधर से होल्ड करना पड़ेगा ना आपको. तो ये एंटीरियर रखना पड़ेगा आपको, एंटीरियर रखना पड़ेगा, इधर से होल्ड करना पड़ेगा इस साइड से. ये राइट लंग. नाउ ये देखो, ये फिशर देखो, ये कौन सा फिशर है? ये कौन सा फिशर है बताओ नाम राइट लंग का. ये कौन सा फिशर है ये वाला? नहीं 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 नहीं, ये हॉरिजॉन्टल फिशर. हाँ ये हॉरिजॉन्टल फिशर है. ये कौन सा फिशर है? ऑब्लिक. ट्रांसवर्स क्यों बता रहे तुम? कहाँ से बता रहे बताओ? ट्रांसवर्स तो मैंने बोला नहीं, उससे बता रहे हो क्या? हाँ दो ही फिशर तो बोलना है, एक ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल. ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ट्रांसवर्स टाइप को जो दिखता है, लेकिन ट्रांसवर्स नहीं बोलना है, नहीं तो फिर आप नया अक्षर बन जाइएगा. ये हॉरिजॉन्टल फिशर, दिस इज द ऑब्लिक फिशर. बस ये अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर. नाउ कमिंग टू दिस, कौन सा साइड का लॉन्ग दिखा रहा है ये बताओ? ये एंटीरियर बॉर्डर हुआ, ये वाला जो है एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, लेफ्ट लंग है. यस. नाउ अपेक्स बेस के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान दो. अपेक्स क्या होता है? ब्लॉन्ट होता है. इट रीचेस नियरली 2.5 सेंटीमीटर above the medial 1/3 of clavicle. पहले बोल चुका हूँ. And medial to the supraclavicular fossa. अब ये apex of lungs covered by which pleura? बोलो. Apex of lungs is covered by which pleura? Cervical. Yes. And also by the suprapleural membrane. And what is another name of the suprapleural membrane? Ipsum fascia. Ipsum fascia. Yes. तो आप चलो बेस के बारे में. तो बेस तो देखा यहाँ पे, बेस नीचे होता है, कॉनकेव शेप होता है. अब वो बेस कहाँ प्लेज होता है बताओ? रेस्ट ऑन द डायफ्राम. बेस ऑफ द लंग कॉनकेव शेप होता है, रेस्ट ऑन द डायफ्राम. एंड डायफ्राम सेपरेट्स राइट लंग, लेफ्ट लंग फ्रॉम द राइट लोब ऑफ लिवर, लेफ्ट लंग फ्रॉम द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, फंडस ऑफ स्टमक एंड स्प्लीन्स. तो आप इतना दो पॉइंट्स लिखने से भी चलेगा इसके बारे में. अपेक्स ब्लॉन्ट होता है, ये कॉनकेव होता है. ये हाउ मच सेंटीमीटर अबव? 2.5 सेंटीमीटर अबव बोलना पड़ेगा. फिर कवर क्या चीज से करता है और यहाँ कहाँ रेस्ट होता है, बस इतना ही. नाउ बॉर्डर के बारे में, तो एंटीरियर बॉर्डर के बारे में यहाँ से देखो, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर. ये राइट लंग का है. ये एंटीरियर बॉर्डर वर्टिकल, ये देखो वर्टिकल होता है, शार्प होता है. ऑन द राइट साइड थीन, मतलब एंटीरियर बॉर्डर कैसा होता है? थीन होता है, शार्प होता है. एंड प्लेस्ड ऑन द एंटीरियर साइड. एंड राइट लंग में दिखेगा, राइट लंग में क्या होता है? वर्टिकल होता है, देखो वर्टिकल. एंड देन लेफ्ट लंग में क्या होगा? कार्डियक नोच होता है. ये देखो, ये भी एंटीरियर बॉर्डर होता है यहाँ तक, बस क्या होता है? देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नोच एंड लिंगुला. ओके, एंटीरियर बॉर्डर में ही. नाउ पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में बताएंगे. तो पोस्टीरियर बॉर्डर बहुत ठीक होता है एंड इल डिफाइंड होता है एंड रिलेटेड टू द हेड ऑफ द रिब्स. इंफीरियर बॉर्डर के बात करेंगे. दैट इंफीरियर बॉर्डर सेपरेट्स द बेस फ्रॉम द मीडियल एंड कोस्टल सरफेस. ओके, मीडियल एंड द कोस्टल सरफेस को सेपरेट करता है. नाउ यहाँ देखो, दिस इज द कोस्टल सरफेस,
दिस इज द मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस में मैंने दो बताया था, एक तो वर्टिब्रल पार्ट होता है, दूसरा डायग्राम होगा यहाँ पे। हाँ, सरफेसेस के बारे में देखो, कोस्टल सरफेस लार्ज होता है, कन्वेक्स होता है, कवर्ड बाय द कोस्टल फ्लोरा, and medial surface again divided into the two part, that is the vertebral part and the mediastinal part. Vertebral part कहाँ लाइज होता है? Related to the vertebral body, intervertebral disc। इतना दो चीज याद रखने से चलेगा आपको। mediastinal part में क्या होता है? mediastinal septum की तरफ लाइज होता है and shows many impression, that is cardiac impression, hilum, roots, ये सारे, and these all are differ in the two lungs। ये देखो structures related to the mediastinal surface of the right and left lung, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, सारे स्टूडेंट्स को ये लर्न करना पड़ेगा। दिस वन, व्हाट आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द राइट साइड ऑफ द दिस mediastinal surface of the right lung, तो आपको ये स्ट्रक्चर हम लिखना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड पूछेगा क्वेश्चन स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द mediastinal surface of the left lung, तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स लिखना पड़ेगा और डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो राइट लॉन्ग, ये जो है राइट लॉन्ग का जो mediastinal सरफेस है, ये देखो ये वर्टिब्रल पार्ट है, ये देखो वर्टिब्रल पार्ट है ये मीडियल सरफेस का। और ये जो इतना एरिया देखो, यहाँ से इतना तक एंटीरियर बॉर्डर तक, यहाँ देखो ये ब्लॉक पार्ट जो है mediastinal पार्ट है। तो ये mediastinal पार्ट में जो है डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर, सम रिलेशन डिफरेंट होता है फॉर द राइट लॉन्ग एंड द लेफ्ट लॉन्ग। अब राइट लॉन्ग के बारे में क्या डायग्राम ड्रॉ करना है, लिखने वाला पॉइंट मैंने बोल दिया हूँ वहां पे। अब चलो ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है, ये डायग्राम जो है एग्जाम में ड्रॉ करना है। अब लिखना क्या क्या है, तो देखिए यही चीज जो डायग्राम में लिखोगे यहाँ पॉइंट्स, यही चीज आपको लिखना है। Impressions on the medial surface of the right lung are following। देखो फर्स्ट थिंग, impression of right atrium and some part of the right ventricle, first point। second point, superior vena cava। third point, inferior vena cava का impression। ये impression बस दिखता है, ये सारे चीज स्ट्रक्चर तो अंदर लाइज होता है, बस impression देखा गया यहाँ पे। Now you can see like this structure, ये देखो इस तरीके से impression देखता है। ये इंप्रेशन के जगह पे जो दिखाया, ये याद करने के लिए दिखाया कि ये स्ट्रक्चर लाइज होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग यू कैन सी देयर इज द आर्च ऑफ एजागस वेन, यू कैन सी हियर दिस इज द आर्च ऑफ एजागस वेन। आर्च ऑफ एजागस वेन एक्सटर्नल एंगल में मैंने बोला था, एक्सटर्नल एंगल के रिलेशन होता है, ये वही यहाँ पे जो एक्सटर्नल एंगल होता है ना, वहीं पे होता है आर्च ऑफ एजागस वेन। नाउ यू कैन सी दिस इज द राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, यहाँ पे दिखता है। देन यहाँ पे दिखता है ये ट्राकिया दिखता है इंप्रेशन। देन ये दिखता है एसोफेगस, ये देखो एसोफेगस इस तरीके से दिखता है। देन द हाइलम एंड द रूट्स ऑफ द लंग, एंड ये जो दिख रहा है यहाँ पे पल्मोनरी लिगामेंट। एंड यू कैन सी टू नर्व हियर, दिस इज द राइट फ्रेनिक नर्व, एंड दिस इज कॉल्ड द राइट वेगस नर्व, एंड these structures are hilum of the structure of the lung and lie in this root of the lung। ये पूरा बोलते हैं रूट्स, इतना को बोलते हैं हाइलम। अभी आपको बताएंगे क्या क्या स्ट्रक्चर होता है इसमें, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ये डायग्राम। और ये सारे चीजों मैंने बोला हूँ अभी, यही पॉइंट सब आपको, ये पॉइंट सब लिखना पड़ेगा। ये देखो ये पॉइंट सब लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, और डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं लिखना है। नाउ कमिंग टू द लेफ्ट लंग। अब लेफ्ट लंग में जो देखो ये स्ट्रक्चर सब इंप्रेशन बनाता है यहाँ पे हमारे स्पेसिमेन में ये स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, बस इंप्रेशन दिखता है। तो आपको इंप्रेशन इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इंप्रेशन क्या क्या होता है ये देखो, सबसे पहले ट्रकिया लिखो, एसोफेगस लिखो, ओके। देन यू कैन राइट द लेफ्ट वेंट्रिकल आल्सो, ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल लिखो। अब यहाँ पे ट्रकिया हो गया, एसोफेगस हो गया, देखो एसोफेगस यहाँ से यहाँ तक जाएगा। देन ये जो है डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, ये देखो आर्च ऑफ एओर्टा भी बना रहे हैं, इसका ब्रांचेस, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये इतना दिख रहा है यहाँ पे। देन पल्मोनरी ट्रंक दिख रहा है, ये देखो। देन 3 नॉब दिख रहा है, 3 नॉब देखो। फर्स्ट नॉब इज द लेफ्ट रिकरेंट लाइंजर नॉब, ये देखो लेफ्ट फ्रेनिक नॉब, दिस इज द लेफ्ट वेगस नॉब। 3 नॉब आपको बोलना है। तो यहाँ पे कौन सा एक्स्ट्रा नॉब दिख रहा है यहाँ पे, बोलो? लेफ्ट रिकरेंट लाइंजर नॉब, लेफ्ट रिकरेंट लाइंजर नॉब।
Now next thing you can see here in the left lung, in the mediastinal surface of the left lung is the thoracic duct भी दिखता है impression. Then एक vein दिखता है यहाँ पे देखो, ये left superior intercostal vein भी दिखता है. तो आपको नेक्स्ट आप जो है सारे स्टूडेंट जो है ये लंग्स का जो है इंप्रेशन ऑन द mediastinal surface of the left lung and right lung, सारे स्टूडेंट्स डायग्राम ड्रॉ करके मेरे को इस पे मैसेज करना है. स्क्लोजी ऐप है ना, स्क्लोजी ऐप में सारे स्टूडेंट्स ये जो है मेडिस्टिनल सरफेस का जो इंप्रेशन बोला हूँ राइट लंग लेफ्ट लंग का अलग अलग सबका सेपरेट अपने हाथ से डायग्राम ड्रॉ करके मेरे को फोटो सेंड करना है, वो उस पे स्क्लोजी ऐप पे सेंड करना है. नाउ कमिंग टू द रूट ऑफ द लंग. रूट ऑफ द लंग मैंने पहले बोल चुका था कि इट इज अ शॉर्ट ब्रॉड पेटिकल होता है, कनेक्ट द मीडियल सरफेस ऑफ द लंग टू द मीडियास्टिनम एंड फॉर्म बाय द स्ट्रक्चर्स व्हिच आइदर इंटर और लीव द लंग एट द हाइलम. नाउ यू कैन सी these all are the contents of the root of the lung. आपको roots of the lung अलग से क्वेश्चन पूछता है तो रूट ऑफ द लंग्स के बारे में आपको डेफिनेशन बोलना पड़ेगा. देन किसको किसको कनेक्ट करता है, मीडियल सरफेस ऑफ लंग्स टू द मीडियास्टिनम को कनेक्ट करता है, और जो हाइलम स्ट्रक्चर्स जो जा रहा है और जो बाहर अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, जो लंग्स का जो हाइलम का स्ट्रक्चर जो होता है वो सारे स्ट्रक्चर इसी में आ जाएगा. तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा ये, और मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारे स्ट्रक्चर. अब ये देखो आपको दिस इज द रूट ऑफ द राइट लंग. रूट ऑफ द राइट लंग ये देख रहे हो, दिस इज द रूट ऑफ द लेफ्ट लंग. तो आपको रूट ऑफ द राइट लंग के बारे में लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. तो आप क्या क्या दिखता है यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा आपको. स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करने का जरूरी इतना है कि आपको इतना पढ़िए ये क्या क्या डायग्राम में ड्रॉ किया है. चलो फर्स्ट पॉइंट, अब ये देखो ये पॉइंट जो दिख रहा है एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, दोनों में कॉमन है. देखो दोनों में ठीक है, एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस दोनों में. नाउ दो वेन दिख रहे हैं यहाँ पे देखो, सुपेरियर पल्मोनरी वेन इंफीरियर पल्मोनरी वेन, यहाँ पे भी सुपेरियर पल्मोनरी वेन इंफीरियर पल्मोनरी वेन. ठीक है, यहाँ पे भी देखो लिम्फ वेसल्स ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स, यहाँ पे भी लिम्फ वेसल्स ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स. देन यहाँ पे भी पल्मोनरी लिगामेंट बोलो या एरोलर टिश्यू बोलो, यहाँ भी एरोलर टिश्यू. नाउ अब यहाँ पे देखो पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे भी पल्मोनरी आर्टरी है. अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे रूट में आपको कि ब्रोंकियल वेसल्स एंड द ब्रोंकस में डिफरेंस है. देखो आपको यही चीज तो याद रखना है, सारी चीज कॉमन है लेकिन क्या क्या डिफरेंट है आपको याद रखना है. दो ब्रोंकस होता है राइट रूट ऑफ द राइट लंग. ब्रोंकस का नाम क्या क्या होता है, ईप आर्टेरियल ब्रोंकस एंड हाइप आर्टेरियल ब्रोंकस. देखो यहाँ पे एक ही ब्रोंकस होता है, इसका नाम होता है लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस. नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज इन द राइट लंग में क्या होता है, रूट्स ऑफ द राइट लंग में एक ही देयर इज द ओनली वन ब्रोंकियल आर्टरी, ओनली वन ब्रोंकियल आर्टरी. एंड यहाँ पे होता है टू ब्रोंकियल आर्टरी. ये देखो टू ब्रोंकियल आर्टरी. ओके, और कॉमन क्या होता है दोनों में, कॉमन सेम देयर आर टू ब्रोंकियल वेन आल्सो, देयर आर आल्सो टू ब्रोंकियल वेन. लेकिन आर्टरी एक ही होता है ब्रोंकियल आर्टरी. एंड यहाँ पे दो ब्रोंकियल आर्टरी, यहाँ पे दो ब्रोंकस, ईप आर्टेरियल ब्रोंकस, हाइप आर्टेरियल ब्रोंकस, यहाँ पे ब्रोंकस प्रिंसिपल ब्रोंकस, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस. तो चलो एक्सप्लेन करो. रूट ऑफ द लंग्स में सारे चीज आ जाएगा. अब हाइलम पूछेगा, यहाँ पे हाइलम पूछेगा तो हाइलम के बारे में आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, बस इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 1 2 3 4 5 ये सारे स्ट्रक्चर, और बाकी छोड़ देना है और ये सारी इस तरीके से बना देना है. और ये देखो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग में, और ये 5 स्ट्रक्चर इन द राइट लंग में. क्या क्या देखो, ईप आर्टेरियल ब्रोंकस, pulmonary artery, then hyp arterial bronchus,
सुपीरियर पल्मोनरी वेन, इंफीरियर पल्मोनरी वेन। यहाँ पे देखो पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे ब्रोंकस एक ही होता है ना, ये देखो यहाँ पे मिडल में। देन यू कैन सी द inferior pulmonary vein, this is the superior pulmonary vein। तो ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बस हाइलम में। अब हाइलम का स्ट्रक्चर प्लस ये जो प्लेक्सस बोला हूँ, ब्रंकियल वेसल्स बोला हूँ, ये लिम्फ नोड्स बोला हूँ, ये सारे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा आप लोग तो ये हो जाता है रूट्स। और ये सबको हटा के बस ये मेन स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करिएगा, 4 यहाँ पे 4 5 यहाँ पे, इसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, हाइलम में स्ट्रक्चर आते अंदर लीव्स करता है, इंटर करता है। तो चलो नेक्स्ट थिंग इज, अब ये लाइज कैसा होता है स्ट्रक्चर्स इन द रूट ऑफ द लंग्स में, हाइलम में स्ट्रक्चर लाइज कैसे होता है। आपको हैप्पैजार्डली डायग्राम ड्रॉ करने से नहीं होता है। ओके, हैप्पैजार्डली डायग्राम ड्रॉ करने से मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा, कितना भी डायग्राम ड्रॉ करो। तो आपको ड्रॉ कैसे करना है, तो ये देखो ये पॉइंट्स हम ध्यान देना है आपको दो तरीके से। एक तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड क्या हो, अब बिफोर बैकवर्ड बोला है। बिफोर बैकवर्ड्स में देखो एंटीरियर में सबसे पहले आपको याद रखना है क्या होता है, एंटीरियर में वेन होता है, देन मिडल में आर्टरी होता है एंड पोस्टीरियर में ब्रोंकस होता है। यहाँ देखो आर्टरी, सॉरी वेन, आर्टरी, ब्रोंकस। यहाँ पे भी देखो वेन, देन आर्टरी, मिडल में आर्टरी एंड ब्रोंकस। तो इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है। और अबव डाउनवर्ड जाएंगे, देखो अबव डाउनवर्ड जाएंगे तो एक टेक्निक है, देखो यहाँ पे देखो ब्रोंकस, आर्टरी, फिर ब्रोंकस एंड वेन। ये अबव डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो ब्रोंकस, आर्टरी, ब्रोंकस, वेन। यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रोंकस एक ही होता है, इसलिए ये जो है ब्रोंकस हटा दो, बस आर्टरी से स्टार्ट करो, आर्टरी, ब्रोंकस, वेन। यहाँ देखो आर्टरी, ब्रोंकस, वेन। ये सुपीरियर वाला छोड़ दो, सुपीरियर वाला मतलब अबव डाउनवर्ड मतलब होता है कि ऊपर से नीचे तरफ ले जाओ। यहाँ पे ये एंटीरियर से पोस्टीरियर में रिलेशन आया, ये मैं बोल रहा हूँ ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, देन लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड देन इंफीरियर पल्मोनरी वेन। तो आपको 2 तरीके से आपको ये याद रखना है। तो ये टेक्निक है, ठीक है। बी स्टैंड्स फॉर द ब्रोंकस, तो 2 ब्रोंकस यहाँ पे देखो, ईप आर्टेरियल ब्रोंकस, देन पल्मोनरी आर्टरी, देन यू कैन सी द हाइप आर्टेरियल ब्रोंकस, देन यू कैन सी द इंफीरियर पल्मोनरी वेन। ये हुआ अबव डाउनवर्ड। अब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आर्टरी, ब्रोंकस, वेन। ये जो ब्रोंकस था ये हटा दो, यहाँ से स्टार्ट करो आर्टरी, ब्रोंकस, वेन, आर्टरी, ब्रोंकस, वेन। तो क्या क्या डिफरेंस मिलता है। हेलो हेलो, may I audible please? Hello hello, Yes, sir. right side में, right roots of the right lung में। Sir, epiparental bronchus, ईप आर्टेरियल ब्रोंकस, ईप आर्टेरियल ब्रोंकस बोलो, देन क्या, pulmonary artery, देन hyperparental hyper- bronchus, एंड देन and इंफीरियर inferior पल्मोनरी वेन। pulmonary vein. हाँ, अब यहाँ लेफ्ट साइड में क्या होगा, यहाँ पे Pulmonary artery, left principal bronchus, inferior pulmonary vein. यस। अब नेक्स्ट तरीके से चलो, एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सुपीरियर पल्मोनरी वेन आएगा एंटीरियरली, देन मिडल में क्या आएगा, मिडल में Pulmonary artery, देन सबसे पोस्टीरियरली में क्या आएगा, ब्रोंकस, हाइप आर्टेरियल ब्रोंकस। ओके, यहाँ भी देखो लेफ्ट साइड में देखो सबसे एंटीरियरली में आएगा सुपीरियर पल्मोनरी वेन, देन मिडल में आएगा पल्मोनरी आर्टरी
एंड देन पोस्टेड आएगा ब्रोंकस, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। आप चलो क्या क्या डिफरेंस मिला ये बताओ, दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम में क्या क्या चीज में ध्यान देना पड़ेगा बताओ। फर्स्ट पॉइंट ब्रोंकस, ब्रोंकस। हाँ क्या कितने ब्रोंकस होता है राइट साइड में? राइट साइड में 2 होते हैं और लेफ्ट में 1 होते हैं। हाँ, और मैंने क्या बोला था डिफरेंस, ब्रोंकियल आर्टरी कितने होता है? ब्रोंकियल आर्टरी राइट में ब्रोंकियल आर्टरी 1 होता है और लेफ्ट में ब्रोंकियल आर्टरी 2 होते हैं। बस ये 2 चीज आपको डिफरेंस बस याद रखना है, बाकी सब सिमिलर है, बाकी सारे चीज जो है सिमिलर होता है राइट साइड में लेफ्ट साइड में। आपको ड्रॉ यस सर हम जब एंटीरियर से पोस्टीरियर जाएंगे तो वो प्लेक्सस इंक्लूड करेंगे क्या? यस नहीं 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 नहीं, लिखते टाइम में तो आपको बस वेन आर्टरी ब्रोंकस, ठीक है। जब सुनो ओके सर, हाइलम पूछेगा ना, हाइलम तो हाइलम में बस ये 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 इस तरीके से। यहाँ पे हाइलम पूछेगा तो ये 1 2 3 4 और इस तरीके से ये सारे चीज। लेकिन रूट्स पूछेगा तो रूट्स के पूछेगा तो ये सारे लिखना पड़ेगा, ये प्लेक्सस, ओके सर, देन ये लिम्फ वेसल्स, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स, एलोर टिश्यू, ये सारे चीज लिखना पड़ेगा। ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन 2 होता है, यहाँ पे 2 होता है राइट साइड में, 2 होता है लेफ्ट साइड में। ओके, अब नेक्स्ट जो है देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा नेक्स्ट डे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, ठीक है। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, तो इतना चीज पढ़ के आना, सारे स्टूडेंट्स पढ़ के आना, जो आंसर बोलेगा उसको प्रेजेंट डालूंगा, नहीं तो जो आंसर नहीं बोलेगा एब्सेंट डालूंगा, याद रखो। और ये बाकी जो है ये सारी चीज कंप्लीट करूंगा विथ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स नेक्स्ट डे, ठीक है। इतना चीज पढ़ के आना है। थैंक यू सर। ये सारी चीज अभी बाद में बोलूंगा, ये सारे चीज। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो सर, जो हम लोग को फोटो अपलोड करना है सर स्कूल लॉजी ऐप में, वो असेसमेंट के तौर पे अपलोड करना है ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे को ऐसे दिखाने के लिए है। असाइनमेंट होगा वहाँ पे, तो असाइनमेंट ओके सर। मैं मैसेज भेज सकते हो, वहाँ पे लगता है होगा वहाँ का ऑप्शन। ओके सर। सर असेसमेंट के तौर पे मैसेज करके भेजना है ना? हाँ हाँ, यस।